हेलो। तो आज थोड़ी एसआरटी की प्रैक्टिस कर लेते हैं। काफ़ी दिन से एसआरटी नहीं हुई हैं, तो लेट अस स्टार्ट practicing SRTs. The first SRT is he was rushing to the railway station to catch a train. On the way, he saw a man snatching the purse of a lady and running away. He अब ही ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसके आगे आपको आंसर लिखना है। He was rushing to the railway station to catch a train. On the way, he saw a man snatching the purse of a lady and running away. क्या आंसर होगा? चेस करेगा, he will chase, will तो आपने लिखोगे वहां पर। He chased the man, raised an alarm. Raised an alarm क्यों important है? He is running very fast. There is some gap, some distance. You started chasing. You may be a very good runner, but still expect that the thief will run faster. And already there is some distance in between. And he may jump or he may climb over somewhere or take a shortcut or disappear in the market or behind some building or something. So you are doing your part. You are keeping an eye on him. You are chasing him. No problem. That is correct. And you have full faith and hope that you will succeed. But by raising the alarm, raising alarm is not your panic reaction. By raising the alarm, you will alert other people who will be coming, may be coming from the opposite direction, who are there around. And after listening to your shouts, your alarm, someone who is closer to the thief will obstruct him and catch him. And you continue. When you reach that place, or if you are a very good runner, again it will depend upon your own physical ability. But most likely average candidate, he is not an athlete or very fast runner. For him, the correct thing will be, and for even for others, the correct thing will be that you raise an alarm simultaneously, so that others will also join in catching the thief. So he caught the thief, he raised an alarm, other people also ran, he ran fast, caught the thief, returned the purse to the lady, handed over the thief to the police and continued his journey. ठीक? Next is, at the time of interview, he found that his certificates were missing. At the time of interview he found, तो कहीं पर सर्टिफिकेट उसके मिसिंग हो गए। अब इंटरव्यू के लिए वो पहुंच गया है वहाँ पर। ओके, so what can he do? Certificates are not there. तो वेरी सिंपल थिंग, अभी तो गवर्नमेंट ने ऐप बना दिया है डिजी लॉकर। तो ऑल योर सर्टिफिकेट्स विल बी अवेलेबल इन डिजी लॉकर। आपको सिर्फ ऐप को डाउनलोड करके और उसमें रजिस्टर करना है, और आपके आधार वगैरह मांगता है डिटेल्स, तो डिजी लॉकर में सारे आपके डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। तो एक तो आपके पास डिजी लॉकर है, एंड दो डिजी लॉकर डॉक्यूमेंट्स आर एक्सेप्टेड। गवर्नमेंट का वो ऐप है, इट इज़ एक्सेप्टेड, और यू शोड द डॉक्यूमेंट्स इन द डिजी लॉकर। ओके, आपके पास फ़ोन में उनकी स्कैन कॉपी भी हो सकती है, आप वो भी दिखा सकते हो। प्रिंट आउट उनका वहीं पर ही निकलवा सकते हो और बाद में उनको दे सकते हो। और अपने जब एफआईआर उसके बाद में जब आप बाहर आओगे तो एफआईआर लॉन्च करा सकते हो, और उसके बाद में बोर्ड से आप जहाँ जहाँ के डॉक्यूमेंट आपके मिसिंग हुए हैं उनको कांटेक्ट करके यू कैन गेट ए डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। तो वो तो आपका फॉलोअप होगा, बात का होगा। इमीडिएट एक्शन क्या है? यूज द डिजी लॉकर डॉक्यूमेंट्स to show, inform the authorities that these documents have been lost,
and the DigiLocker documents were accepted. Later on, he lodged an FIR and got his duplicate set of documents from the various universities and boards. तो जवाब तो सारा इतना बनता है. अब 30 सेकेंड्स में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कॉमा लगा के आप लिख सकते हो. तो जो 3-4 एक्शन हर सिचुएशन के साथ में होते हैं, किसी में 2 होते हैं, किसी में 3 होते हैं, किसी में 4 होते हैं, यू शुड राइट ऑल दोज एक्शंस एज मच एज पॉसिबल. अब कंस्ट्रेंट आता है स्पीड का, सर इतनी लिख नहीं पाते हैं, तो थोड़ा प्रैक्टिस कर लो. अगर आप लिख पाओगे तो अच्छी बात है, कॉमा लगा के लिख दो. और फिर नहीं लिख पाओगे तो जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्शंस हैं 1, 2, 3 जितने भी आप लिख सकते हो उतने लिख दो. ओके, चलो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट. He was the captain of basketball team and his team was about to lose in the final match. कैप्टन है, टीम हारने वाली है. तो टीम हारने वाली है, इसके ऊपर एक छोटा सा एक इंसिडेंट है. Someone has gone, वो मैच देख रहा था, तो ये एक लड़का था उसके पास में खड़ा था, उसकी टीम को वो चीयर अप कर रहा था और उस लड़के की टीम हार रही थी. तो उस आदमी ने इस बच्चे को, लड़के को पूछा कि अरे तुम्हारी तो टीम हार रही है यार, तुम तो हार जाओगे. सो दिस बॉय रिप्लाइड, द फाइनल विसल इज नॉट येट ब्लोन. तो उसने कहा उससे क्या होता है? आदमी ने कहा, ही सेड कि यू वेट एंड सी. तो उतनी देर में उसकी टीम ने एफर्ट करे और दे वन द मैच. एंड देन द बॉय टोल्ड दैट पर्सन, see, I told you the final whistle is not yet blown. अभी वक्त बाकी है. And I have faith and I have confidence in my team that it will win. तो ये तो एक जो उस टीम के सिंपैथाइजर था, उसकी ऐसी सोच है कि मेरी टीम जीतेगी. अभी आप देखो ना, रुक जाओ, अभी फाइनल विसल तो बजी नहीं है ना, अभी आप वेट करो. So this is the type of confidence in the sympathizer. So what type of confidence the captain should have? He was the captain of basketball team and his team was about to lose in the final match. He took a break, devised his strategies with his team, played with full josh and won the match. चलिए नेक्स्ट है. He was on a boat with his friends and in the midstream he noticed water entering the boat. He दोस्तों के साथ नाव पे था और मिड स्ट्रीम में देखा कि बोट के अंदर पानी आ रहा है. रिटन वर्ड पे फोकस करो, पानी कितनी तेजी से आ रहा है ये नहीं कुछ लिखा है. तो हम ना एक्सेजरेट करेंगे, मैक्सिमाइज करेंगे और ना मिनिमाइज करेंगे कि एक एक ड्रॉप ही आ रहा था पानी. तो ये हमारा परसेप्शन है कि पानी बोट के अंदर आ रहा है तो एक रीजनेबल स्पीड से आ रहा होगा. ऐसा भी नहीं कि बहुत ही धीरे धीरे आ रहा है और ऐसा भी नहीं कि पूरा इतना बड़ा छेद एकदम हो गया कि पूरी नाव में पानी भरा जा रहा है. तो अकॉर्डिंगली जितनी एक्शन की रिक्वायरमेंट है उतना एक्शन आप लोगे. तो यहाँ पर हम एक एवरेज मान के चल रहे हैं कि विच इज़ मैनेजेबल. तो अब एक्शन क्या करेगा ये? यहाँ कोई पैनिक नहीं मचाना, कोई अलार्म रेस करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. आप लड़के ने अपनी शर्ट उतारी और उस होल को प्लग कर दिया. तो सिंपल है यहाँ पर. He was on a boat with his friends and in the midstream he noticed water entering in the boat. He took out his shirt and plugged the hole and continued the journey. यहाँ पर कोई और एक्शन, अलार्म, पैनिक यहाँ पर करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. सिंपल है. नेक्स्ट इज, he was moving on a scooter with his wife through a dense forest. On the way, he was stopped by a gunman who demanded valuables. He, वाइफ के साथ थ्रू ए डेंस फॉरेस्ट, घने जंगल में से निकल के जा रहा है. ऑन द वे ही वॉज स्टॉप्ड बाई ए गनमैन हु डिमांडेड वैल्यूएबल्स, कि भाई अपनी ज्वेलरी और पर्स वर्स पैसा वैसा सब मेरे को आप दे दो. तो ही, सोचो यहाँ पर, ही
अब ये एक मौका है आपको करेज दिखाने का। और अगर एक आदमी है, गनमैन है, गन लिए हुए है, तो यहाँ पर आप जान बचा के भाग भी सकते हो, तो भागो, वैल्यूएबल्स दे दो उसको, वो आपका स्कूटर भी ले जाएगा, बाइक भी ले जाएगा, और या फाइट करो। अब यहाँ मुझे कैंडिडेट्स कहते हैं कि सर गनमैन है, गन है सर उसके पास, वो तो एक है, तुम दो हो। अब आप ये मान लेते हो कि जो आपके साथ में लेडी है, योर वाइफ, तो वो तो बिल्कुल डेलिकेट लड़की है। आपको झांसी की रानी के बारे में नहीं सुना, आपने मैरी कॉम के बारे में नहीं सुना, लेटेस्ट है। विनेश फोगट और अभी कितनी लड़कियां धरने पर बैठी हुई थी, ये भी लड़कियां ही है ना। तो वाई डोंट यू हैव दैट कॉन्फिडेंस दैट योर वाइफ इज ऑल्सो, शी इज नॉट वीक, शी इज स्ट्रॉन्ग। और चलो, आप हम नहीं कहते कि मैरी कॉम है या विनेश फोगट है या कोई और अच्छी कुश्ती वाली लड़की है या बॉक्सिंग वाली लड़की है, नॉर्मल लड़कियां मार्शल आर्ट सीखे हुए होती हैं, जूडो कराटे सीखे हुए होती हैं, चलो वो भी नहीं सीखे थी है, तो चिली स्प्रे लड़कियां अपने पास रखती हैं, आजकल तो सब जगह है। आई सॉ वन वीडियो रिकॉर्डिंग थी जिसमें some boys were teasing the girl at the bus stand, and one girl she saw, she came out, took out the chili spray और टक 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 स्प्रे करा, सारे के सारे नीचे गिर के तड़प रहे थे आंखों में जब उनके स्प्रे गया। तो आप गलती ये करते हो कि पहली बात तो खुद को मजबूत नहीं समझते, उसके बाद उसको भी वीक समझ लेते हो। तो वो अपना काम कर रही है, इतनी गोली चला देगा, कहाँ चला देगा, और आप आगे बढ़ के अपनी जो फाइटिंग स्किल्स हैं उनसे आप उसको न्यूट्रलाइज करो। आपने भी अगर जूडो कराटे करा, नहीं करा तो आप सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स तो सभी को पता ही है ना। अगर आप देखो फौज के लिए जा रहे हो तो यू आर नॉट सो फिजिकली वीक कि आप कह दो कि सर मैं तो क्या करता वहाँ से, और आप लड़की को भी वीक समझ रहे हो। मेरी सोच ये है, आपकी अपनी जो सोच हो आप उस हिसाब से काम करो। मेरी सोच ये है कि यू विल नॉट एक्सेप्ट डिफीट बिफोर ए फाइट, और यही फौज में हम चाहते हैं कि हमारा जो सोल्जर है बिना फाइट करे हार ना मान ले, और फाइट करे तो विन करे, और वो तो एक है आपके, आप तो दो हो। तो अभी आपके ऊपर आई लीव इट। माई रिस्पॉन्स विल बी दैट यूजिंग हिज फाइटिंग स्किल्स he kicked that man at sensitive parts, snatched his gun, and his wife used chili spray and then tied his hands and took him, handed over him to the police. This will be my response because this is my personality, and I expect कि अगर आपके अंदर भी इतना हिम्मत और भरोसा है तो आप ये रेस्पॉन्स लिखो, और अगर इससे कम हिम्मत और कम भरोसा है और लड़की को भी आप वीक समझ रहे हो तो देन यू से कि भाई वो जल्दी हैंड ओवर कर दिया, जान बचा के और वापस आ गया। तो ये सब डिपेंड करेगा कि आपका थॉट प्रोसेस, आपके अंदर करेज कितनी है। सी हियर दिस इज द अपॉर्चुनिटी टू शोकेस योर करेज, विल पावर, डिटर्मिनेशन, will to fight, not to surrender easily, not to give up, not to avoid the problem, not to run away. तो चलो 5 SRTs we have analyzed and we'll continue later on. Write in the comment box what are your views so that everyone comes to know, others who read your replies, that what you should do or what you decide to do in such a situation. Bye bye.